Hello friends, my name is Dr. Ajay and in today's lecture we will learn Unit 5 Human Physiology for NEET 2023 examination. This unit starts with a paragraph which is given on page number 255 of NCERT. The reductionist approach to studying life forms increased the use of physicochemical concepts and techniques. Now here comes the question, what is the reductionist approach? Looking at the diagram given below, you must have got some idea that the reductionist approach means to understand anything at a smaller or molecular level. उदाहरण के तौर पर यहाँ एक वॉच है। अब ये कैसे काम करती है, इसमें समय किस तरह से दिखता है, ये सब समझने के लिए आपको इसके अंदर कौन सी चीजें हैं, क्या क्या है, ये समझना पड़ेगा। जब हम इसे और गहराई से समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसके अंदर एक बैटरी है जिसके अंदर केमिकल्स होते हैं और इन्हीं केमिकल्स में रिएक्शंस होती है और ये सब समझने के लिए हमें केमिकल कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है, केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट्स है उसकी ज़रूरत होती है। ऐसे ही जब वॉच का कांटा घूमता है तो हमें उसे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लगाकर समझना पड़ता है। ऊपर दिए गए उदाहरण से आप समझे होंगे कि चीज़ों को माइक्रो लेवल पर पढ़ना या फिर उन्हें समझना ही रिडक्शनिस्ट अप्रोच है और इस तरह से पढ़ने के लिए हमें फिजिको केमिकल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। With the reductionist approach, we study the tissues and the cells. When this kind of knowledge increased a lot, it led to the formation of molecular biology. Molecular biology is nothing but it is just a branch of biology that deals with the studies of molecular interactions between the cells and within the cells. Molecular physiology became almost synonymous with the biochemistry and biophysics. मॉलिकुलर फिजियोलॉजी यानी मॉलिकुलर लेवल पर फिजियोलॉजी को समझना, जैसे कि सेल कैसे काम करती है, दो सेल्स के बीच में किस तरह से इंटरेक्शन होता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी जो स्टडी है उसे हम मॉलिकुलर फिजियोलॉजी कहते हैं। मॉलिकुलर फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स के साथ इसीलिए सिनोनाइमस है क्योंकि जब हम मॉलिकुलर लेवल पर किसी चीज़ को पढ़ते हैं तब हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट लगाकर चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। When we learn digestion and absorption, then we will know better regarding the kind of reaction that occurs when sucrose breaks down into the glucose and fructose, and how we understand it with the help of concepts of the chemistry. However, it is now being increasingly realized that neither a purely organismic approach nor a purely reductionist molecular approach would reveal the truth about biological process or living phenomena. अगर हमें लिविंग फिनोमेना क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, ये जानना है तो हमारा अप्रोच सिर्फ एक तरह का नहीं होना चाहिए। हमारा अप्रोच जरूरत के हिसाब से ऑर्गेनिज्मिक भी होना चाहिए और रिडक्शनिस्ट भी होना चाहिए और तब जाके हम लिविंग सिस्टम्स को फिजियोलॉजिकल लेवल पर जाके अच्छे से समझ सकेंगे। ऑल लिविंग फिनोमेना आर इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज यानी सब चीज़ों से मिलकर बनी हुई प्रॉपर्टी जो कि इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होती। नीचे दिए गए डायग्राम से समझना हो तो एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल्स बने हैं, मॉलिक्यूल से सेल्स और सेल से टिश्यू। जो प्रॉपर्टी टिश्यूज में है वो प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल्स में नहीं है। मसल टिश्यू मूवमेंट कर सकती है लेकिन मॉलिक्यूल्स जिससे मसल टिश्यू बनी है वो मूवमेंट नहीं कर सकते। बहुत सारे कंपोनेंट्स में जब इंटरेक्शन होता है तब जाके इनर प्रॉपर्टी बन जाती है। Molecules, cells, tissues, organs, organisms, populations, and communities each have their own emergent properties. In the chapters under this unit, the physiology of the digestion, exchange of the gaseous, blood circulation, locomotion, and movement are described in cellular and molecular terms. So, ये सब जो chapters ऊपर दिए गए हैं उनकी जो फिजियोलॉजी है हम सेलुलर और मॉलिकुलर लेवल पर समझेंगे। While the physiology of the last two chapters, namely neural control and coordination, chemical coordination and integration, will be studied at the organismic level. Next page starts with a paragraph. The person seen in the photo is Alfonso Corti, who is an Italian anatomist. He published a paper which described a structure which is located on the basilar membrane. उस स्ट्रक्चर में हेयर सेल्स होती है जिसका काम है साउंड वाइब्रेशंस को नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करना। स्ट्रक्चर को इन्होंने डिस्क्राइब किया था इसीलिए इनका नाम का एक हिस्सा उस ऑर्गन के नाम के साथ दिया गया है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, जो कि हम डिटेल्स में आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर।
In the next lecture, we will start the digestion and absorption chapter. This was my first lecture in the online world. आपको ये lecture कैसे लगा इसके बारे में comment section में ज़रूर मुझे राय दें. See you in the next lecture. Till then, keep studying and enjoying.